موجودگی پہ بات کر دیں؟ کہہ رہے ہیں کر دیں. بسم اللہ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج قومی اسمبلی کے اندر ہم نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرارداد پر حکومت کو کہا کہ بحث کی جائے، چونکہ ہم چاہتے تھے کہ اس اہم مسئلے کے اوپر ایوان کے اندر بحث کے ذریعے پاکستان کے عوام کے جو جذبات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کے حوالے سے ان کا پرزور اظہار ہو. لیکن آج حکومت نے اور اسپیکر نے نہ صرف ہمیں بلکہ اپوزیشن کے کسی بھی فرد کو بولنے کی اجازت نہیں دی، اور حکومت کی غیر سنجیدگی کا یہ عالم تھا کہ جو قرارداد حکومت نے پیش کی آج اسے قومی اسمبلی کی کارروائی کے ایجنڈے سے بھی ہٹا دیا گیا. اور اسی حوالے سے ہم حکومت سے استفسار کرنا چاہتے تھے کہ کیوں کر اسمبلی کی کارروائی کے ایجنڈے سے اس اہم ترین قرارداد کو نکال دیا گیا ہے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کو محض کمیٹی کے سپرد کر کے اس اہم ترین قرارداد سے ہم کمیٹی نہیں کھیل سکتے، لہٰذا پورے قومی اسمبلی کے ایوان کو قواعد کے مطابق ایک کمیٹی میں تشکیل دیا جائے. قومی اسمبلی کے قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ جب کوئی اہم ترین مسئلہ درپیش ہو تو پورا ایوان کمیٹی کی تشکیل کر سکتا ہے، خود کو کمیٹی تشکیل کر سکتا ہے. لیکن حکومت نے اس طرف بھی کوئی ہمیں جواب نہیں دیا. اسی طرح ہم نے حکومت سے استفسار کیا تھا کہ ہمیں حکومت معلومات دے کہ اس کی پالیسی کیا ہے، چونکہ وہ قرارداد تو ایک پرائیویٹ ممبر نے پیش کی تھی، نہ وزیر اعظم نے پیش کی، نہ حکومت کے کسی وزیر نے پیش کی. لہٰذا اس قرارداد کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے، وہ ایک نجی ممبر کی قرارداد ہے. تو حکومت کی اس بارے میں کیا پالیسی ہے؟ پھر اسی طرح ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور DGI اس حوالے سے ریاست کی جو پالیسی ہے وہ ایوان کے سامنے پیش کریں، تاکہ ایوان ایک انفارم ڈیبیٹ کے ذریعے اس کے اوپر ایسا پرزور اور جامع اور سبسٹینٹیو قرارداد منظور کرے جو کہ حقیقی معنوں میں 22 کروڑ عوام کے جذبات کی نشاندہی کرتے ہوں. لیکن حکومت نے اس طرف کوئی جواب دینے کی بجائے آج سوال جواب کے کارروائی کو جاری رکھنا زیادہ ضروری سمجھا. اور جب ہم نے احتجاج کیا کہ ہمیں بولنے کا موقع دیا جائے تو حکومت اور اسپیکر صاحب اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے التوا کا شکار کر کے اسے برخاست کر کے رائے فرار اختیار کر گئے. اسی طرح ہم اس قرارداد کے ساتھ ساتھ چاہتے تھے کہ دو اہم مسئلے جن کا پاکستان سے بہت اہم تعلق ہے ان کو بحث میں لایا جائے. ابصار عالم صاحب سابق چیئرمین پیمرا پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے. یہ پاکستان کی صحافت پہ حملہ ہے، آزادی صحافت پہ حملہ ہے. یہ عمل کئی عرصے سے اس حکومت کے آنے کے بعد سے کافی عرصے سے چل رہا ہے کہ آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا جائے، میڈیا کو سینسرشپ کے ذریعے بند کیا جائے، اور اگر کوئی صحافی دباؤ قبول نہ کرے تو اسے اغوا کر لیا جائے، اس پہ قاتلانہ حملہ کیا جائے. یہ جبر اور استبداد کی پالیسی پاکستان کے آئین اور قانون اور ان بنیادی حقوق کی نفی ہے جو پاکستان کا آئین آزادی رائے کے لیے ہمیں دیتا ہے. ہم اس کے اوپر بھی حکومت سے استفسار چاہتے تھے لیکن حکومت نے موقع نہیں دیا. تیسرا اہم ترین مسئلہ کہ کوئٹہ میں جب ہمارے سب سے قریبی دوست ملک، برادر ملک چین
کا اعلیٰ ترین وفد موجود تھا، سفیر اور ان کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن موجود تھا۔ وہاں پر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا، یہ صرف دہشت گردی نہیں تھی، یہ سی پیک کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، اور یہ براہ راست حکومت کی نااہلی اور نالائکی ہے کہ پاکستان کے اہم ترین دوست کے سفیر کے دورے کے موقع پر ایسی کارروائی ہو جانا، چونکہ وہ علاقہ نہایت گارڈڈ علاقہ ہے، وہ کوئی عام علاقہ نہیں ہے، اور اس سے پاکستان کی شہرت کو، پاکستان کے امیج کو اور سی پیک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں کہوں گا کہ یہ واقعات دہشت گردی کے اس لیے زور اٹھا رہے ہیں کہ حکومت نے سیکیورٹی کے اداروں کو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپوزیشن اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف جھوٹے مقدمے قائم کرنے، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے پر جھونک دیا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ ادارے 200% دہشت گردی کے اوپر کام کرتے تھے، سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال نہیں کیا جاتا تھا، جس کا نتیجہ تھا کہ پاکستان میں ہم نے دہشت گردی کو شکست دی۔ لیکن پچھلے کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کی ترجیح دہشت گردی نہیں ہے، اس حکومت کی ترجیح اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے، انتقامی کارروائیاں ہیں۔ تو آخر میں پھر کہوں گا کہ ہمارے دل اور جذبات مجروح ہوئے کہ ایک ایسی قرارداد جو ہر پاکستانی کے دل کے قریب ہے، جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے اس دن بھی اسمبلی میں کہا تھا کہ اس سے زیادہ اہم کام کیا ہے کہ جس کو وزیر اعظم کر رہے ہیں اور ایوان کے اندر نہیں ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود ہوتے اور حکومت کے وزیر اس قرارداد کو پیش کرتے، لیکن اس روز حکومت نے نہ وزیر اعظم آئے، نہ کسی وزیر میں جرت ہوئی کہ اس قرارداد کو پیش کرے، اور آج پھر حکومت نے اپنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد سے زیادہ انہوں نے روٹین کے کویشچن آر کو موقع دیا کہ اسے چلایا جائے، اسے بلڈوز کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرنا چاہتے تھے تو کویشچن آر کو زبردستی چلانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ حکومت نے ہمارے جذبات سے بھی کھیلا ہے اور قوم کے جذبات سے بھی کھیلا ہے، اور اس عمل پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت معافی مانگے اور بجائے اجلاس کو برخاست کرنے کے اس کو جاری رکھے، تاکہ اس کے اوپر ایوان کا ہر ممبر اپنے جذبات کا اظہار کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور جس طرح احسن اقبال صاحب نے آج قومی اسمبلی کی کارروائی کی تفصیل آپ کو بتائی، یقیناً بہت ہی سنجیدہ مسئلے پر جس غیر سنجیدگی کا مظاہرہ اسپیکر صاحب نے کیا، اور ہم 2 دن سے اس پر سوچ رہے ہیں کہ حکومت کا موقف وزیر اعظم کی سطح پر جب انہوں نے قوم کے سامنے پیش کیا، اور اگلے روز حکومت کے وزراء نے قومی اسمبلی کے سیشن سے پہلے ہی اناؤنس کر دیا کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور ہم حکومت کی جانب سے آج قرارداد پیش کر کے اس معاہدے کو تکمیل تک پہنچائیں گے جو ہم نے TLP کے ساتھ کیا۔ لیکن قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے ایک پرائیویٹ ممبر کے ذریعے بل کو، قرارداد کو پیش کیا، اور ٹی وی پر آ کر انہوں نے یہ بات کی کہ حکومت نے اپنا معاہدہ پورا کر لیا ہے، جبکہ بین الاقوامی میڈیا کے سامنے انہوں نے یہ موقف رکھا کہ یہ ایک پرائیویٹ ممبر کی صورت میں ہم نے قرارداد کو پیش کیا ہے، یہ حکومتی پالیسی نہیں ہے،
मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को कौमी असम्बली में आकर इस इब्हाम को दूर करना चाहिए कि जो उन्होंने बैनुल-अक़वामी दुनिया और अपनी कौम के सामने पेश किया है कि एक जानिब तो वो कौम से कह रहे हैं कि हमने आपके ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और बैनुल-अक़वामी दुनिया में जिस तरह लड़ा है उस तरह किसी ने नहीं लड़ा। और दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी दुनिया से कहते हैं कि इस करारदाद से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। इस अमल को हम किस चीज़ से ताबीर करें कि वो बैनुल-अक़वामी दुनिया को धोखा दे रहे हैं या अपनी कौम को धोखा दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह आजकल मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के मसाइल हैं, हम समझते हैं कि कोयटा धमाका ये हम पाकिस्तान पर इसको हमला तस्वर करते हैं, और दीगर मुल्क के अंदर भी जो सूरत हाल है और जिसकी बुनियाद माशी सूरत हाल बनी है कि ढाका, चोरी और कत्ल गारत जिस तरह गली गली में इस वक्त रक्स कर रही है, हम मुतालबा करते हैं कि मुल्क के अंदर फिलफौर अमन के हवाले से इक़दामात उठाए जाएँ। लोग कत्ल हो रहे हैं, दुकानों में कत्ल हो रहे हैं, बाज़ारों में कत्ल हो रहे हैं और घरों के अंदर उनके डाके हो रहे हैं। खुदारा हुकूमत होश के नाखुन ले, कौम का पैमाना सब्र से लबरेज़ हो चुका है। हम कौमी असम्बली के अंदर कौम के मसाइल को उजागर नहीं कर सकते, नामूस रिसालत के मसले पर बात नहीं कर सकते, ख़त्म नबूवत के मसले पर बात नहीं कर सकते और कौम बिलबिला रही है। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की तमाम जमातें उनको भी इस हवाले से हंगामी तौर पर मीटिंग बुलानी चाहिए और देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर अंदर ही इस पर गौर व खौज करके एक पॉलिसी देनी चाहिए कौम के जज्बात की तर्जुमानी के लिए। आज आपके सामने हुकूमती मुनाफ़िक़त की बदतरीन मिसाल आई है। इसकी कोई नज़ीर पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ में नहीं है। आज हमें तवक्को थी कि एजेंडे पर नामूस रसालत के मामले पर बहस का आगाज़ होगा, एजेंडे पर नहीं रखा गया। हमने ज़ोर दिया कि आज इस बहस का आगाज़ किया जाए। हुकूमत ने राय फरार इख्तियार की। स्पीकर साहब आज तशरीफ़ ही नहीं लाए। हुकूमत का कोई वज़ीर आज ऐवान में नहीं आया। आज कुर्सी सदारत पर एक ऐसे शख्स को बिठाया गया, डिप्टी स्पीकर साहब को, जिनके इलेक्शन कमीशन का लज़म करार दे चुका है। हाई कोर्ट उसकी तौसीक कर चुका है। जो एक स्टे ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट से आज असेंबली का मेंबर है, उसको कुर्सी पर बिठाया गया। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, मैंने मंगल के दिन भी कहा था कि अगर असेंबली में बात नहीं हो सकेगी, अवाम के मसाइल की बात एक तरफ, अबसार आलम साहब पर हमला एक तरफ, आज़ादी सहाफ़त पर हमला एक तरफ, हम वो बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर नामूस रसालत पर बात ना हो सके, फिर मैं माजरत से कहूँगा कि वही होगा जिसकी निशानदेही मैंने मंगल को की थी। फिर अफसोस का इज़हार मत करें। आप क्यों ऐवान से भागते हैं? जो दावे करते हैं कि हम दुनिया के सामने मामले को लेकर जाएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाएंगे, OIC में लेकर जाएंगे, आज वो अपनी कौमी असम्बली में, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, नामूस रसालत के मसले पर बहस से गुरेज़ां है। इसकी क्या वजह है? किस बात से घबराते हैं आप? और आज वहाँ पर सिर्फ अपोजिशन के लोग नहीं थे, अपोजिशन की तमाम जमातों के लोग थे, हुकूमती बेंच से भी लोग थे, हुकूमत के MNA भी आज मौजूद थे, जो कह रहे थे कि इस नामूस रसालत के मामले पर बहस की जाए। आज हुकूमत किस बात से डर रही है? हमारी
मुतालबा है, कल छुट्टी का दिन ज़रूर होगा लेकिन ये मामला उससे बड़ा है। कल से बहस का आगाज़ किया जाए। एक मुत्तफ़िका करारदाद कौमी असम्बली से आनी चाहिए ताकि सारे मुल्क को पता चले कि पाकिस्तान के अवाम नामूस रसालत के मामले पर मुतहद हैं। पाकिस्तान के अवाम एक है। हमारे सियासी मसाइल हो सकते हैं, हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, नामूस रसालत पर कोई दो राय नहीं है मुल्क के अंदर। ये मामला हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान के दिल के करीब तरीन मामला है। आज इमरान खान इस मामले से भी भागेगा, इसको हम भागने की जगह नहीं देंगे। ये बात आप याद रखें। मैं फिर मुतालबा करता हूँ कि अगर आज शाम को इजलास नहीं बुला सकते तो कल सुबह इजलास बुलाएं, ताकि ये मामला, आज पूरा मुल्क इंतज़ार कर रहा है कि इस मामले पर कौमी असम्बली कोई मुत्तफ़िका करारदाद पास करेगी ताकि हम सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान के अवाम के जज्बात रख सकें। वासी साहब, बयान आया जिसमें कहा गया कि हुकूमत ने जो करारदाद लानी थी वो ले आए। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर कोई अपनी करारदाद लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं। इसके ऊपर कमेंट करें। करारदाद पड़ी है किसी ने जो हुकूमत लाई है, हम कहते हैं उसी से इब्तिदा कर लें। उसमें पहला नुक्ता क्या है, ज़रा पढ़ लें अपनी करारदाद को। हुकूमत के तर्जुमान जो है, ये अगर हुकूमत ने लाना था तो हुकूमत ने वजीरों ने क्यों पेश नहीं की? वज़ीर आज़म को पेश करनी चाहिए थी। क्या ये मामला इतना मामूली नौइयत का है कि वज़ीर आज़म ऐवान में तशरीफ़ नहीं ला सकता, उसके वज़ीर करारदाद नहीं दे सकते? अवाम को बेवकूफ़ ना बनाए। ये मामला सिर्फ सियासत का नहीं है, ये मामला पाकिस्तान के हर शख्स के दिल के करीब है। ये सियासी बातें नहीं है जो हम कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा शाइखा खान अब्बासी साहब, ये बता दें कि आपकी जमात का और आपकी जमात का फ्रांसीसी सफ़ीर के मामले पर वाज़े मौक़िफ़ क्या है? हमारा बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि रियासत इस मामले पर अपनी पॉलिसी ऐवान में रखे ताकि उस पर कोई फ़ैसला हो सके। ये रियासती मामलात हैं। अपोजिशन असम्बली सिर्फ इस पर बहस नहीं कर सकती। हुकूमत पॉलिसी लाएगी, उस पॉलिसी पर बहस होगी, उसके बाद पार्लिमान फैसला करेगा। वासी साहब, बहुत मियां शुक्रिया। नवाज शरीफ साहब की जायदाद नीलाम करने का हुक्म दिया नायब कोर्ट ने अभी सर, इस पे क्या रद्द अमल है आपका? मियां नवाज शरीफ साहब की जायदाद नीलाम होने के बाद नवाज शरीफ साहब का सब कुछ ले लें, नामूस रसालत पर सब कुछ कुर्बान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हुकूमत ने जिस कन्फ्यूजन का, जिस तरीके से पाकिस्तान की कौमी असम्बली में अपोजिशन को बात करने से रोक दिया, उसकी मिसाल कोई नहीं मिलती। आपको मालूम है कि सोमवार वाले दिन, मंडे वाले दिन उजलत में जिस वक़्त वज़ीर दाखिला ने कोशिश की कि उससे कहा गया कि आप पॉलिसी बयान दें कि TLP के साथ आपका क्या मुआहदा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि शाम को वज़ीर आज़म साहब देंगे, और साथ ही इन्होंने एडजर्न कर दी असम्बली और कहा कि जुमेरात वाले दिन अब हमारा इजलास होगा। लेकिन दूसरे दिन, मंगल वाले दिन, उन्होंने इजलास कर लिया। हमारे तमाम मेंबरान जो थे वो जा चुके थे, यहाँ कोई मौजूद नहीं था। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो इजलास मंगल वाले दिन करने की क्या उजलत थी, क्या इमरजेंसी थी, और उससे क्या इन्होंने हासिल किया। एक अजीबो-गरीब किस्म की जो थी वो करारदाद इन्होंने की, और उस पर बात भी नहीं करने दी किसी को। आज हम उस करारदाद पे बात करना चाहते थे, आज हम बात करना चाहते थे, और कुछ सवालात थे हमारे जो हम हुकूमत वक्त से पूछना चाहते थे। आज हम इनसे ये पता करना चाहते थे कि आपने TLP के साथ क्या मुआहदा किया था, जो आपका पहला मुआहदा था वो क्या था, और अगर आपने कोई मुआहदा किया था
उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? आपने उनको बैन कैसे कर दिया? किस कानून के तहत आपने उन पर बैन लगाया? उनको कालादम करार दे दिया और फिर दूसरे दिन बैठकर आपने उजलत में उनको कालादम करार दिया, मासूम लोगों को गोलियों का निशाना बनाया, लाशें गिरा दी, पाकिस्तान की पुलिस के जवान मारे गए जो हमारे बच्चे थे, टीएलपी के कारकुन मारे गए जो हमारे बच्चे थे, पाकिस्तान के बच्चे थे। क्यों? ये कौन सा तरीका था? और फिर दूसरे दिन आप उनके साथ बैठ गए कि जनाब हम आपके साथ जो है वो गुफ्तगू शनीद करना चाहते हैं। असेंबली में आपने किसी बात का जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म ने शाम को कौम से खिताब किया और उन्होंने क्या खिताब किया, कौन सी पॉलिसी थी? और फिर दूसरे दिन जिस वक्त आप मंगल वाले दिन आना चाहते हैं तो कम से कम इतना तो टाइम दे हम मेंबरान को कि हम पहुंच सके। हमारे किसी मेंबरान ने सिंध से आना था, इंटीरियर सिंध से आना, कराची से आना, रहीम यार खान से आना, तो कैसे पहुंचते लोग? तो ये सारा मामला जो है उजरत में एक अटर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में, और यूं महसूस होता है कि हुकूमत जानबूझकर हालात को ख़राब कर रही है। चाहिए तो ये था कि वज़ीर आज़म जो है वो ईवान में आते और वो आके कहते कि नामूस रसालत के लिए मैंने ये इक़दामात किए, लेकिन वज़ीर आज़म साहब गायब हैं। उन्होंने एक आम रुकन को, जो हमारा भाई है, उसको प्राइवेट मेंबर के तौर पर, भाई अमजद नियाजी के दरमियान जिन्होंने ये तहरीक पेश की थी, क्या उनके दरमियान और टीएलपी के दरमियान मुआहदा हुआ था या हुकूमत और टीएलपी के दरमियान मुआहदा हुआ था? अगर हुकूमत ने मुआहदा किया था तो फिर हुकूमत को एक्शन करना चाहिए था, हुकूमत को जो है वो करारदाद लानी चाहिए थी। और दूसरा, करारदाद में क्या लिखा है? करारदाद आज जब आपने पढ़ी है तो करारदाद इतनी गोलमोल है जिसका कोई ना सर है ना पैर। करारदाद में लिखा है कि आप बहस करें, कमेटी बनाएं और बहस करें। किस चीज़ पर बहस करूं? आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आपके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। किसी मुल्क के सफ़ीर को निकालना या सफ़ीर भेजना आपके इख्तियार में है। आप वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करें अगर आप समझते हैं कि वो ठीक है। हाँ, उस पर फिर अगर किसी को एतराज़ होता तो वो फिर हाउस में बात कर सकता था। आपने एक्शन क्या किया है जिस पर जो है वो बहस की जाए? कोई आपने एक्शन ही नहीं किया तो बहस किस चीज़ पर होगी? तो मकसद इनका ये था कि सबको बेवकूफ़ बनाना, टाइम गेन करना। कोई क्लैरिटी नहीं है इनके माइंड में। इन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी में इनको कह दो कि हमने करारदाद पेश कर दी है और उस पर बात ना करने दो किसी को, और फिर कह दो फलां जमात तो आई नहीं। भाई हम इसलिए नहीं आए कि आपने हमें मौका ही नहीं दिया। आज हम मौजूद हैं, आए बैठे, हमसे क्या बात आप करना चाहते हैं? पहले आप बताएं बतौर वज़ीर आज़म कि आपने क्या अपना फ़र्ज़ अदा किया। मैं फिर मुझे ये बात नहीं करी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है शान रसालत के हवाले से, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत और इश्क के हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। दुनिया की कोई शख्सियत। हमने साबित की एक्शन से, बातों से नहीं। और आपको पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नामूस रसालत का तहफ़्फ़ुज़ किया, शायद ही किसी ने किया हो। हम सबको सही समझते हैं, हम हर मुसलमान को समझते हैं कि वो आशिक़ रसूल है, लेकिन ये आप माशरे में क्या कर रहे हैं? आप कोई एक्शन नहीं कर रहे, आप बातों में टाल रहे हैं हर चीज़ को, कत्लो आम कर रहे हैं। पूरे माशरे को आपने किस हालत में रखा है? हमारे ज़माने में भी तो डेनमार्क पे जो है वो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी हुई थी, एक खाके बनाने की कोशिश की गई थी, और यूट्यूब पर आए थे, आपको पता है, और गूगल पर आए थे। मैं वज़ीर आज़म था, मैंने 24 घंटे के अंदर अंदर उनको कहा था कि ये हटाओ वरना हम एक्शन करेंगे। गूगल ने हटा दिए, यूट्यूब ने नहीं हटाए, तो हमने यूट्यूब को बंद कर दिया था। बतौर वज़ीर आज़म अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ, क्या मैं असेंबली का इजलास बुलाकर उस पर बहस करवा रहा था? ये क्या बात है? किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म अपनी ज़िम्मेदारी में मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं।
जो ये कहते हैं वो करते नहीं। आज हम बात करना चाहते थे, आज हम इनसे सवालात पूछना चाहते थे। आज हम पूछना चाहते थे कि TLP के जो मासूम लोग मारे गए हैं, निहत्थे लोग मारे गए हैं, उनका जिम्मेदार कौन है, किसके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स होती है। जो पुलिस वाले मारे गए हैं उनकी जिम्मेदारी किस पर फिक्स होती है। फिर हम इनसे ये पूछते हैं कि आप 124 और 25 दिन अगर जो है वो धरना देते हैं तो वो जायज़ है हुकूमत हासिल करने के लिए, और वो अगर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए निकलते हैं तो उनको आपने गोलियों का निशाना बनाया। ये तजाद क्यों है, ये सवालात। फिर उसके बाद आज कोयटा में जिस वक्त वाक़या होता है, और कोयटा में जो वाक़या होता है उसकी तफसीलात हम जानना चाहते थे। इसी तरह हम लोग जो पेमरा के चीफ हैं अबसार आलम, उसके बारे में पता करना चाहते थे। तो क्या ये पाकिस्तान के अवाम का हक नहीं है कि उन तक ये मालूमात पहुँचे। और हम जो पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदगान हैं, हमारा हक था ये हम सवालात करते हैं। आपने देखा कि स्पीकर ने एक सेकंड के लिए भी हमारी तरफ नहीं देखा और असेंबली को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करके वोट कर चले गए। तो क्या मैसेज दे कर गए हैं? क्या ये लोग सिंसियर हैं काज के साथ? पाकिस्तान के अवाम को मालूम होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम के आंखों में धूल झोंकनी अब ख़त्म कर दो। अब ये गंदी और घटिया सियासत पाकिस्तान में नहीं चलेगी। और आज का जो कुछ जिस तरीके से भी अमल हुआ है, मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि इन लोगों ने कुछ नहीं करना है। इन्होंने ट्रक की बत्ती के ऊपर लगा देना है। इसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। ये जो कुछ कहते हैं वो करते नहीं है। ये झूठ और दगाबाजी, चालाकी, होशियारी, उसको सियासत समझते हैं। इसलिए आज जो कुछ हुआ उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी, हम आए थे और हम अपना इनपुट देना चाहते हैं। जो कहते थे ना कि इनपुट दो, हम आए थे इनपुट देने के लिए। तो आज आपने देनी नहीं थी हमें इनपुट। आज आपने हमें ये बताएं कि क्या आप TLP पे पाबंदी की मुखालफत करते हैं और फ्रांसीसी सफीर को निकालने की हिमायत करते हैं? देखें जी, जो आप TLP पर जो पाबंदी लगी है ये बिल्कुल गलत, ये नहीं लगा सकते। अगर TLP पर इन्होंने पाबंदी लगाई है, फिर किस मुंह के साथ उनके साथ ये मुज़ाकरात भी कर रहे हैं? क्या ये रियासत का काम है? एक तरफ तो फिर दूसरे दिन वही वजीर दाखिला बैठा हुआ कह रहा है अरे भाई क्या करें, ये तो सियासी जमात तो है ना। तो सियासी जमात पर पाबंदी लगती है। और एक और बात, वजीर आज़म अपनी तकरीर में कहता है कि TLP और मेरे जो ख्यालात हैं एक ही हैं। अगर तुम दोनों के ख्यालात एक हैं, अगर उस पर फिर पाबंदी लग सकती है तो आप पर भी पाबंदी होनी चाहिए। अब दूसरे सवाल का जवाब दें, फ्रांसीसी सफीर को निकालने की हिमायत करते हैं? ये हुकूमत को अपना एग्जेक्टिव ऑर्डर इस्तेमाल करना चाहिए। इसको बहस में लाए बगैर एक्शन करना चाहिए। मैंने YouTube को बंद किया था। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अगर लोगों की दिल आज़ारी उसने की है तो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराएं, जो भी तरीका करें, खाए वो एक्सपेल्शन से करें, एहतजाज से करें। लेकिन वज़ीर आज़म कहता मैंने तो खतूत लिखे हैं। कभी इसने बताया कि उन खतों का जवाब किसने क्या दिया आपको? मंजूर साहब ने कहा है कि फ्रांसीसी सफीर को निकाल देना चाहिए और आप कहते हैं कि हुकूमत वाजा करे। हुकूमत का काम है ना, अपोजिशन तो नहीं निकालेगी। कौन निकालेगा? 26 अप्रैल को PDM ने स्टीयरिंग कमेटी का इजलास बुलाया, आप जा रहे हैं? नहीं, हमें तो इतला ही नहीं है। और आपको पता है कि हमने इस्तीफे दे दिए। जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ, देखें, इसको कंफ्यूज ना करें। वजीर आज़म पाकिस्तान अपनी फ़राइज़ मनसबी अदा करने में इस मामले में मुकम्मल तौर पर नाकाम। बस ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। थैंक यू। हम क्या चाहते, हम जोर से
हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, भारत से लेंगे, भारत से लेंगे, कश्मीरी लेंगे, कश्मीरी लेंगे, ए मोदी सुन ले, ए मोदी सुन ले, कश्मीरी लेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, इमामनाथ के सदके, शोहदा के सदके, कश्मीरी लेंगे, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, we want, we want, we want, we want, we want, we want. हम क्या चाहते है? हक हमारा, गिलानी का नारा, मीरवाइज का नारा, आसिया का नारा, यासीन का नारा, शबीर का नारा, माऊ का नारा, बेनू का नारा, बच्चू का नारा, बूढ़ू का नारा, नौजवानों का नारा, वो जम्मू मांगे, लद्दाख भी मांगे, करगिल भी मांगे, श्रीनगर भी मांगे, हक हमारा, हम छीन के लेंगे. No more occupation, no more. No more, no more. हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के. No more, no more. No more, no more. No more, no more. Yes, Kashmir. हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, आजादी का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, छीन के लेंगे, मर मिट के लेंगे, है हक हमारा, है हक हमारा, शोहदा के सदके, शोहदा के सदके, मुन्नान के सदके. आप फिर से पूछा तो शाकिर बोला, मुन्नान से पूछा बुरहान बोला, शाकिर से पूछा तो शहीद बोला, बोला आजादी तक, इंडिया की बर्बादी तक, इंडिया की बर्बादी तक, कश्मीर की आजादी तक. नारे तकबीर. भाई से गुजारिश के हाथ उठा के जवाब दे दे. नारे तकबीर, नारे तकबीर. हम क्या चाहते, हक हमारा, मौला दे दे, मौला दे दे, शोहदा सदके, बुरहान के सदके, यासीन मांगे, गिलानी मांगे, शबीर मांगे. पाकिस्तान से रिश्ता क्या, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, कश्मीर कर रहे थे. हमारे आज एक ही मुकर्रर है, वो साहिबा, जो किसी तारीख की मुद्दाई नहीं है, वो कश्मीर के वक्त बात करती है. राना बशाना खड़ी है. मैं ऑल पार्टीज की तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. और यूथ हम लेके रहेंगे, वन स्लोगन वन ट्रैक, वन स्लोगन वन ट्रैक, वन स्लोगन वन ट्रैक. भाई हेलो, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. जुम्मे का दिन है और अभी जुम्मे के खुतबे के बाद नमाज पढ़ी है सब मुसलमानों ने. और यहाँ फैसल मॉस्क के बाहर जो APHC जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुर्रियत रहनुमा सारे यहाँ पे मौजूद हैं. YF की जो यूथ फॉरम फॉर कश्मीर है के साथ मिलके यहाँ पर है. और जो सीनियर मोस्ट लीडरशिप है हमारी हुर्रियत क़यादत की, उसमें सैयद फैज़ नक्शबंदी साहब, शेख मतीन साहब, रफ़ीक डार साहब, सलीम हारून साहब, अब्दुल्ला गिलानी साहब और भी बहुत से, नसीम वानी साहब, शमीम शौल साहिबा और जितने भी यहाँ पे सीनियर्स भी हैं, खादिम हुसैन साहब, मुश्ताक हमीद भट्ट साहब,
और जाहिद अशरफ साहब, आप सब की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, शेख अजीज़ साहब के भाई, और जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं हमारे इस धरने के अंदर, इस प्रोटेस्ट के अंदर, कश्मीरियों, खतीब साहब, बहुत से सीनियर, सारे माशाल्लाह बहुत इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं कश्मीर की तहरीक के, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर से यहाँ आज़ाद कश्मीर में जिनकी फैमिलीज़ रहती हैं, जिनके बिछड़े हुए इस वक्त जो है उनसे वो रब्ता नहीं कर सकते, हमारी जो फैमिलीज़ हैं। और आज भी काफ़ी दुख की बात होती है कि रमज़ान का महीना है, वहाँ पे ना सहरी के वक्त ना अफ्तारी के वक्त दुकानें खुली होती हैं, जुमे की नमाज़ पढ़ने आप लोग आए हैं यहाँ पे, खुतबा भी सुनने, मगर कोई वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम है ही नहीं कश्मीरियों के लिए। और इस वक्त जो वहाँ पे जुल्म हो रहा है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, कि आप इस महीने में देख लें 25 से ज़्यादा अपने जवानों की लाशें मिली हैं और 100 से ज़ायद लोगों को अरेस्ट किया गया है मकबूजा जम्मू कश्मीर में। अगर सिर्फ हम इसी महीने को हम देख लें, उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी जो बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त मोदी सरकार को जो फैटिफ के अंदर घसीटा जा रहा है, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत देर होगी इस बात को। हम कश्मीरियों की कुर्बानियाँ जो थीं इतने 70 सालों की, वो इंशाअल्लाह ताला रंग लाएंगी, चाहे वो डिसइंफो लैब की सूरत में हो जो एक्सपोज हुआ है हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा, चाहे इनको फैटिफ के अंदर लेके जाया जाए, क्योंकि जिस तरह हमने पिछली प्रोटेस्ट में भी सबने स्लोगन्स किए थे, आवाज़ उठाई थी कि सबसे बड़ा दहशतगर्द इस वक्त हिंदुस्तान है पूरी दुनिया के अंदर, जो दहशतगर्दी कश्मीरियों के साथ कर रहा है, पूरी कौम की नस्ल कुशी हो रही है। आप तो माशाल्लाह से एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, चाहे कोरोना है, चाहे कुछ भी हो रहा है, आपके लॉकडाउन्स हैं, मगर आपकी रियासत आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी एक पहचान है, आपकी एक सॉवरेनिटी है। आप ज़रा सा अंदाज़ा लगा लें, पूरी दुनिया में जो लॉकडाउन चल रहा है ये आपकी जानों को बचाने के लिए है, मगर कश्मीरियों के साथ तो 70 साल से एक लॉकडाउन सीज है, एक कर्फ्यू है, लोगों को मारा जा रहा है। अगर कोई खिड़की से भी बाहर देखता है, झांकता है, तो उसको शहीद कर दिया जाता है। बच्चों की लाशें हम उठा रहे हैं, बल्कि इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए हिंदुस्तान ने और भी मज़ीद इनकाउंटर शुरू कर दिए हैं, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। हम इस वक्त फैसल मॉस्क के पास हैं, दुनिया में बहुत मशहूर तरीन, खूबसूरत तरीन मुसलमानों की ये मस्जिद है, मगर क्या आपको अंदाज़ा है कि हज़रत बल पे क्या हो रहा है, क्या बाबा रशी पे क्या हो रहा है? जो हमारी दरगाहें हैं, जो हमारी मस्जिदें हैं, चुन चुन के उनको शहीद किया जा रहा है वहाँ पे। और ये 5000 से ज़ायद मस्जिदों को इन्होंने टारगेट दिया है बीजेपी की खूनी सरकार ने कि इनको शहीद करके इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर मंदिर तामीर किए जा रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि खून के आंसू रो रही है कश्मीरी कौम, खंजर मार रही है हिंदुस्तान की सरकार एक निहत्ती कौम के ऊपर। आप सब यहाँ पे खड़े हुए हैं, अगर दुश्मन की आर्मी आके आपको बंदूकों से मार दे, लाख आपका जज्बा हो, कितना मुकाबला आप करेंगे? कभी एक दिन की बात आप सोचें, पूरे पाकिस्तान को अगर कोई खुदा न खास्ता यरगमाल बना दे। कश्मीरी कौम 70 साल से इस चीज़ से गुजर रही है, इस कर्ब से, और वहाँ पे जो हमारी हुर्रियत की आदत है सारी की सारी, चाहे वो सीनियर मोहम्मद सईद अली गिलानी साहब हों, सहराई साहब हों, मेरे अपने शौहर यासीन साहब जो तिहाड़ की डेथ सेल के अंदर हैं, उनके ख़िलाफ़, और दूसरी जो क़यादत है हमारी आसिया अंद्राबी साहिबा, ख़वातीन जो हैं, 3 ख़वातीन लीडर जो हैं हमारी, उनको भी तिहाड़ के अंदर बंद किया गया है। और इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी कश्मीर की, कश्मीर के सीनियर मोस्ट लॉयर्स, ट्रेडर्स, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, हर किसी को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान की तरफ से। कातलाना हमले किए जा रहे हैं, जेलों में टॉर्चर किया जा रहा है, और इसके ऊपर तो दुनिया बोल भी रही है। अभी लेटेस्ट जो यूनाइटेड स्टेट्स की तरह स्टेट डिपार्टमेंट से भी रिपोर्ट आई है ह्यूमन राइट्स की, उसमें भी ये कहा गया है, यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसकी जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है उसने भी ये बात की है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए यूरोप का हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि वो बदतरीन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर रहा है। और आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम ही यही है, सबसे बड़ा क्राइम है कि इंसानियत को ही दफन कर दिया जाए। कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई लीगल आवाज़ नहीं है, कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जा रहे कश्मीरियों के। सारे रिलीजियस राइट्स, रमज़ान के महीने में हर इंसान चाहता है इसको सुकून हो, इबादत करे, मगर इसी चाहे मुहर्रम हो, रमज़ान हो, इसमें सबसे ज़्यादा
ظلم کیا جاتا ہے. ہماری کیا عیدیں ہونی ہیں؟ وہاں پہ تو ہر وقت ماتم چل رہا ہے. مگر پھر بھی اس دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ کی طرح یہ لکھا جائے گا کہ اگر دنیا میں کوئی اتنی بہادر قوم آئی تو وہ صرف اور صرف کشمیری قوم تھی. دنیا کی تاریخ میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں مگر کبھی ایسی جنگ نہیں سنی ہوگی کہ بیچ میں ایک نہتی قوم ہو اور ایک طرف ایک فرعون کی آرمی کھڑی ہو جو کہ اس سے مقابلہ نہتے کر رہی ہو اور ڈر نہ رہی ہو اور کفن باندھ کے اپنی تحریک چلا رہی ہو. ہر کشمیری جہاد کر رہا ہے. ہر کشمیری وہاں پہ کھڑا ہوا ہے نہتا. ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. سکولز بند ہیں. آپ نے تو اپنے بچوں کو اب سکول سے بند ہوا ہے 1-2 سال سے. دنیا حیران ہو گئی ہے کہ ہمارے بچوں کے کیا ان کا فیوچر ہوگا. ہر کسی کی نوکریاں چلی گئی ہیں. اکانومیز تباہ ہو گئی ہیں. بلینز کا نقصان ہوا ہے کشمیری قوم کو. اور یہاں پہ جو ہماری APHC ہے یا جو کشمیری کمیونٹی پاکستان میں رہتی ہے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. کسی کا پتہ ہی نہیں ہے. 2 سال سے میں نے یاسین صاحب کی آواز نہیں سنی ہے. یہ پولیٹیکل رائٹس جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں, یہ پرزنرز آف کانشنس ہیں کشمیری جو عوام ہے. آپ جیسے یہ وہ ینگسٹر لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں جن کے خواب ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں سکون ہو, ماتم نہ ہو, خوشیاں ہوں, وہاں پہ رمضان منائیں, آزادی ہو, ان کو اپنے حق کی آزادی ہو, حق کی خود ارادیت اللہ انہیں دے. مگر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی انٹرنیشنل کمیونٹی کو آج کے دن کے حوالے سے, کیونکہ آج کل دنیا کے اندر بے شک روکنے کوئی نہیں آ رہا ہندوستان کا یہ ظلم, مگر آوازیں اٹھ رہی ہیں ظلم کے خلاف. چاہے وہ UN کی رپورٹس ہیں, چاہے وہ یورپین یونین پارلیمنٹ کی جو ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے اس کی طرف سے, چاہے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, ہیومن رائٹس واچ ہے, چاہے امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے. میں سب سے یہی اپیل کروں گی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان کے اوپر لیگل, ڈیفینس اور اکنامک سینکشنز لگائی جائیں. ہندوستان کو بلیک لسٹ کرایا جائے کیونکہ اس نے ہر وہ راستہ امن کا بند کیا ہوا ہے, کیونکہ اس نے کشمیریوں کو ہی ختم کرنے کا جو منصوبہ بنایا ہوا ہے. یہ شیم ہے ہندوستان کی سو کالڈ سیکولر ڈیموکریسی. ویسے بھی ہندوستان کا کیا حال ہو رہا ہے یہ میں سمجھتی ہوں کشمیریوں کا صبر پڑا ہے. ہندوستان کے اندر جو افراتفری ہو رہی ہے, جو مائنورٹیز کے ساتھ کیا جا رہا ہے, کاش یہ مائنورٹیز جو تھی پہلے کھڑی ہو جاتی کشمیریوں کے حق کے لیے جو ظلم ہندوستان کر رہا ہے. نہ کبھی کشمیری انڈینز تھے, نہ ہیں, نہ کبھی ہوں گے. اور ہم لوگوں نے یہ قربانیاں اپنی آزادی کے لیے دی ہیں. ہم نے یہ کسی فارمولا کے لیے نہیں دی ہیں, ہم نے کسی نیگوسیشن کے لیے نہیں دی ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری حریت کی عادت ہے, جو ہمارے رہنما جس وقت جیلوں میں, آج تک انہوں نے امن کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں بنے. ہمیشہ انہوں نے ویلکم کیا ہے ڈائیلاگ کو. مگر ہندوستان نے ہر دفعہ 70 سال ہو گئے, 50 سال دھوکہ دیا ہے ڈائیلاگ میں. تو میں اب دنیا سے بھی اور پاکستان کی حکومت سے اور پولیٹیکل پارٹیز اور سول سوسائٹی سے بھی اور انٹرنیشنل ورلڈ سے بھی یہ کہوں گی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایک بہت میجر پارٹی ہے اس ڈسپیوٹ کی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہے, ہندوستان ہے, اور سب سے بڑھ کے کشمیری ہیں, کشمیری ریپریزنٹیٹیوز ہیں. اگر کشمیری آن بورڈ نہیں ہوں گے تو یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. اور ہم خدا نخواستہ 27 فیبروری جو 2 سال پہلے نیوکلیئر کوڈز ایکسچینج ہوئے تھے, اس سے بھی بدتر جنگ کی طرف ہم جا سکتے ہیں. اب میں خطے کے بھی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, خاص طور پہ چائنا سے بھی اپیل کروں گی, اور بنگلہ دیش, نیپال, جتنے بھی ممالک ہیں, کہ وہ اگر امن چاہتے ہیں, وہ ترقی چاہتے ہیں, اگر وہ اپنی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ CPEC کو بھی چلانا چاہتے ہیں, تو اس کا راستہ یہی ہے کہ کشمیر کا پرامن طریقے سے حل ہو. اسی طرح میں امریکہ سے بھی اپیل کرتی ہوں, پرماننٹ 5 کنٹریز سے بھی کشمیریوں کے بہاف کے اوپر, کہ وہ اپنا رول پلے کریں اس سے پہلے کہ اور مزید دیر ہو جائے. کیونکہ جو مودی کی خونی سرکار ہے, اگر اس کے اوپر سینکشنز نہیں لگی جائیں گی, اگر ہندوستان کی خونی آرمی کو اکاؤنٹیبل نہیں کیا جائے گا, تو میں سمجھتی ہوں ہم ایک بہت ہی خوفناک فیز کے اندر جا رہے ہیں. دنیا آخر میں بس یہی کہوں گی کہ پاکستان کی حکومت کو بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہ کشمیر سب سے بڑا ایشو ہے, پولیٹیکل ایشو ہے, نہ صرف پاکستان کا بلکہ پورے خطے کی سلامتی کا, امن کا اور پراسپیرٹی کا. تو اس کو سب سے مین پہ لایا جائے, اس کے اوپر کم از کم 5 سے 10 سال کی پالیسی ہو
जिस के तहत हम UN की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक़ खुदरादियत दें। और मैं तहे दिल से पाकिस्तानी कौम की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हर पाकिस्तानी बच्चा दिल से, बुज़ुर्ग, माएँ, बेटियाँ कश्मीरियों की आज़ादी के लिए, कश्मीरियों पे जो जुल्म हो रहा है उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। आपसे भी मैं ये अपील करूंगी कि अपने पॉलिटिकल लीडर्स को बताएं कि अगर इस खित्ते के अंदर हम अमन चाहते हैं, टेररिज्म ख़त्म हो, तो हमें उसके लिए एक ही रास्ता है कि कश्मीर का पुरअमन हल हो। ये दुश्मनियाँ तभी ख़त्म होंगी जो हिंदुस्तान की फ़िरौनियत है, जब कश्मीर का मसला हल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया मशल मलिक साहिबा। कुछ साल पहले जब ये दिल्ली में थी यासीन मलिक साहब के साथ, तो बीजेपी के गुंडों ने इन पे हमला किया था, लेकिन ये हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, अज़्म के साथ इस तहरीक के साथ है और इस तहरीक के लिए अपना सब कुछ मुख्तस कर रही है। हम इनके शुक्रगुजार हैं, हम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जिस तरह ये आवाज़ उठाती है सफारती तौर पे, सियासी तौर पे, मीडिया के हवाले से। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। जो शहीद हुए, जो अभी गिरफ्तार हैं, उन तमाम के लिए, हौसले के लिए, हिम्मत के लिए और मग़फ़िरत के लिए, उनके लिए दुआ। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैता व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैता व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैता व बारिक लना फ़ीमा आतैता व क़िना शर्र मा क़ज़ैता फ़इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैका इन्नहु ला युज़िल्लु मन वालैता व ला युइज़्ज़ु मन आदैता तबारक रब्बना व तआलैता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैका रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم कुछ लोग दाएं बाएं कुछ मस्जिद नजर आ जाएगी, आप तरफ चलेंगी ना, मैं आप इस तरफ मुंह कर ले, मेरी तरफ इस तरफ कर